Bismillahirrahmanirrahim. Students, Allied School Al Miraj Campus, Class 9, Matrix and Determinants. What is a matrix? Anything written in square bracket is called, in a specific order, is called a matrix. Then we have two things, row and column. Anything written in horizontal is known as rows, and anything written in vertical are known as column. For example, in this matrix, A, B, C and D, these are two rows, and in this matrix, A, C, B and D are two columns. The order of matrix is known as the product of row and column is called the order of matrix. Whenever we multiply the number of rows with the number of columns, we have the order of the matrix. Now we will discuss some important matrices. Row matrix, a matrix that have only one row. You can see only one row, 1, 2, there is only one row, so this is known as a row matrix. A matrix that have only one column, 1 and 2, we have only one column, so this is known as column matrix. Square matrix, a matrix which has same number of rows and columns. You can see this is a square matrix because it has two rows and two columns. We written by 2 by 2. It means that square matrix is a matrix that have same number of rows and same number of columns. Rectangular matrix, a matrix which have different number of rows and columns. You can see this matrix, it has two rows and one column, and this one row and two column, so number of rows and column are different, so these both are known as rectangular matrix. Diagonal matrix, a square matrix in which at least one diagonal is 0. You can see this is square matrix and this diagonal is 0, so this square matrix now becomes a diagonal matrix. Square matrix, a scalar matrix, a diagonal matrix in which diagonal is same. Now we have the diagonal matrix when one diagonal is 0 but the other diagonal, non-zero diagonal is same, then we say that this is not a diagonal matrix, we say that it is a scalar matrix. Unit matrix, a scalar matrix in which diagonal is 1. Now we have this scalar matrix, but in this the same number diagonal, non-zero diagonal, which is same, but we have only 1 in that position, so we will call it a unit matrix. It is no more a scalar matrix. Transpose matrix. To take the transpose of any matrix, we change row into column and column into row. For example, we have a matrix A, 1, 2, 3, 4. Then we want to take the transpose. We shift the 2, this 1, 2 row will convert into 1, 2 column, and then 3, 4 row will convert into 3, 4 column. So what we did, we changed the rows into columns and column into rows, we get the transport. Two basic types of definitions, singular matrix and non-singular matrix. If the determinant of the matrix is equal to 0, when we say A determinant is equal to 0, then the matrix is singular, and when it is not equal to 0, then we say that it is a non-singular matrix. Inverse of a matrix, that means A inverse is equal to adjoint A over A determinant. I have an example here when A is equal to 1, 3, 2, 4. How to take the adjoint? First the adjoint. In the adjoint, the left diagonal, ये जो लेफ्ट डायगनल है इनकी जगह तब्दील होती है, और जो राइट डायगनल है इनके सिर्फ साइन तब्दील होते हैं. तो 4 को हम ऊपर ले गए, 1 को हम ले आए नीचे, और +3 था तो -3 कर दिया, और +2 था और -2 कर दिया. और A डिटर्मिनेंट निकालना है. पहले इस
लेफ्ट डायगनल को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 ज़ार 4, माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे, 3 2 ज़ार 6, तो 6 - 4 - 2 आएगा। अब ऊपर हम एडजॉइंट लिख देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे डिटर्मिनेंट के साथ, तो ये इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकल आता है। किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमने इन्वर्स निकालना है तो ये फार्मूला है एडजॉइंट A ओवर A डिटर्मिनेंट। अब लास्ट एक्सरसाइज आपके पास 1.6 आ जाती है, जिसके अंदर 2 इक्वेशंस आती हैं और 2 मेथड्स होते हैं, इन्वर्स मेथड और क्रेमर्स रूल। इन दोनों को 1 बाय 1 एक ही क्वेश्चन लेकर मैंने 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। पहले मैंने इसको इन्वर्स मेथड से किया है। ये देखें कि ये जो x वाले हैं 2 और 6 ये पहले उतार लिए, और फिर ये y वाले 1 और 5 ये इधर उतार के ये एक 2 बाई 2 का मैट्रिक्स बना लिया। फिर 2 बाई 1 का मैट्रिक्स बनाना है जिसके अंदर हमने वेरिएबल्स लिखने हैं x और y, फिर इज़ इक्वल टू का निशान, और फिर इज़ इक्वल टू के बाद हमारे पास 3 और 1 है, ये एक मैट्रिक्स बना देना है। इसको A का नाम दे देना है, इसको कैपिटल X का, इसको कैपिटल B का। उसके बाद क्योंकि हमने वेरिएबल्स की कीमत निकालनी है तो A को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, A इनवर्स आ जाएगा। A इनवर्स का आपको पता है कि ये होता है एडजॉइंट A ओवर A डिटर्मिनेंट। तो पहले तो एडजॉइंट A का किस तरह किया मैंने, 5 को ऊपर ले गया हूँ, 2 को नीचे, और दोनों पॉजिटिव वाले थे, +1 और 6 +6, तो ये -1 और -6, और नीचे इनका डिटर्मिनेंट लिया है 2 5 ज़ार 10 माइनस अपनी तरफ से 6 1 ज़ार 6, और आगे B का जो डिटर्मिनेंट है वो B की वैल्यू लिख दी है। उसके बाद क्या किया है, मल्टीप्लाई 5 3 ज़ार 15 प्लस माइनस माइनस और 1 1 ज़ार 1, फिर ये 6 3 ज़ार 18 -18 प्लस 2 1 ज़ार 2। अब 15 में से 1 माइनस करें तो 14 आता है, 14 को 4 पे डिवाइड कर दें, और 18 में से 2 माइनस करें तो -16 आता है, तो उसको भी 4 के साथ, दोनों को 4 के साथ बारी बारी डिवाइड कर देना है। इसको हम 2 के टेबल पे काटेंगे तो x आ जाएगा 7/2 और y आ गया -4। अब इसी सवाल को अगर क्रेमर्स रूल के साथ करना है तो ये सेम क्वेश्चन, स्टार्टिंग सेम वही है ब्रैकेट्स में लिखने का, सिर्फ यहाँ पर हम लिखेंगे कि x इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ax ओवर a डिटर्मिनेंट एंड y इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ay ओवर a डिटर्मिनेंट। पहले हम a डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, 2 5 ज़ार 10 माइनस 6 1 ज़ार 6, तो 4 आ गया, लेकिन ax डिटर्मिनेंट नहीं है। पहले हम ax मैट्रिक्स बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे, जब हम ax मैट्रिक्स करेंगे तो हम जो x वाले कॉलम वाले हैं 2 और 6 इनको निगलेक्ट करके वहाँ पर b का जो मैट्रिक्स है 3 और 1, ये देखें 3 और 1 मैंने x की जगह पर लगा दिए हैं और एक मैट्रिक्स बना दिया ax। अब इसका डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ, 3 5 ज़ार 15 माइनस 1 1 ज़ार 1, ये 14 आ गया। अब ये देखिए मैंने क्या लिखा था, x इज़ इक्वल टू ax ओवर a डिटर्मिनेंट, तो ax का वैल्यू 14 और a की वैल्यू 4, दोनों को कट करके 7/2 आ गया। अब जब हमने y का निकालना है तो हमें पता है कि ay, अब ay के लिए आपने क्या करना है कि जो y वाले कॉन्टेंट्स हैं यानी 1 और 5 इनको भूल जाना है, इनकी जगह पर हमने 3 और 1 लिखना है। ये देखें 2 और 6 एज इट इज़ लिखा हुआ है और 1 और 5 की जगह मैंने 3 और 1 लिखा है और ये ए वाई का मैट्रिक्स बन गया। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे 2 1 ज़ार 2 माइनस 6 3 ज़ार 18, तो -16 आया। इधर वैल्यू लगा दी -16/4, 4 1 ज़ार 4 4 4 ज़ार 16, तो y इज इक्वल टू -4। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि दोनों तरह से जब हमने सवाल किया है तो दोनों का सेम आंसर आता है, इसलिए आपको हर ये 8 क्वेश्चंस हैं 1.6 के, ये लाजमी करने हैं क्योंकि ये लॉन्ग में आते हैं और ये दोनों आपने प्रैक्टिस करने हैं अच्छे तरीके से। और इसके अलावा अगर कोई इंक्वायरीज़ हैं तो आप गूगल क्लासरूम में कांटेक्ट कर सकते हैं अपने
ऑब्जेक्शंस दे सकते हैं, उसका हम आंसर करेंगे। खुदा हाफिज़।